Now it's going to be Chief Minister Ashok Gehlot's big ticket budget 2023 with the Rajasthan elections slated for later this year. And this year, the state government's budget has been given a very catchy tagline, Bachat, Rahat and Badhat, which is roughly translated as savings, relief and growth. Now the Congress is riding high on the government's thrust on social security schemes in the past 4 years, and it's hoping to beat the revolving door of politics to get the party another term. My colleague Harsha Kumari Singh gets us more details. It's going to be Ashok Gehlot's final budget before the next elections, that is at the end of 2023. And of course, the Congress party is banking on the thrust to social service schemes that has been implemented by the Gehlot government in the past 4 years. In fact, the Chief Minister has also called for a National Security Act at the national level. So if that is the tone and tenor of this government's outlook, then clearly you can expect a lot of SOPs in this budget, a lot of extra emphasis on social security schemes. The Chiranjeevi Bima Yojana, which is a very successful health insurance scheme, will probably see an increase in allocation. The government also has started an urban employment schemes on the line of Manrega, probably focus on that, but the special focus is clearly going to be on the youth. And you can look at extra scholarships, schemes for the youth, because remember, the Gehlot government has also passed an order saying that all colleges should make arrangements for the youth to watch this election budget today. Now, why is the youth vote important? Because 4% of the youth vote in Rajasthan is actually critical. It can swing either way. So that's something that we're going to have to look out for. Also, the soft Hindutva. Is the Gehlot government going to do something for temples, for developing religious circuits? Well, clearly with an eye on elections, it's going to be a budget to look out for. In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV. चुनावी बजट है, इसलिए कई उम्मीदें हैं इस बजट से, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है बचत, राहत और बढ़त पर? कहां मिल रही बढ़त? आपको लग रहा है कि बढ़त चुनाव में है या एक्चुअली बढ़त मिलेगी सरकार को? मुख्यमंत्री जी अपने जादुई कला से अलग अलग बोल को उछालने का काम करेंगे, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, अन्य युवाओं के लिए, लेकिन धरातल के ऊपर वो बोलें आने वाली नहीं है, क्योंकि पहले 4 बजट मुखिया जी पेश कर चुके हैं। 4 बजटों में से एक भी बजट की 20% से ज्यादा क्रियान्वित अभी तक हो नहीं पाई। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बजट से राजस्थान की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको लगता है ये जो टैगलाइन दिया है, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने अपने बजट को टैगलाइन दिया है, बचत, राहत और बढ़त? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर ये कितने टैगलाइन दें, कितने स्लोगन दें। मुख्यमंत्री जी 98 से लेकर 2003 तक रहे मुख्यमंत्री, तो इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नंबर 1, लेकिन जब 2003 के अंदर चुनाव हुए तो 156 सीट जीत कर आने वाली कांग्रेस 56 पे सिमट गई। तो ये स्लोगनों से या टैगलाइन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता महसूस कर चुकी है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। रामलाल जी, जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें घरेलू सिलेंडर करीब 1000 रुपए का है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वो उसमें 1 करोड़ लोगों को रियायत देंगे, करीब 400-500 रुपए का हो जाएगा सिलेंडर। तो इससे तो कहीं ना कहीं, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? लोगों को तो फायदा मिलेगा राजस्थान में। देख ली, ये घोषणा करेंगे कि हम इतने लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेंगे, फिर बैरिकेड लगाएंगे, इनकम टैक्स की इनकम कितनी है, फिर बैरिकेड लगाएंगे, सरकारी कर्मचारी है ही नहीं है, फिर बैरिकेड लगाएंगे जमीन कितनी है, फिर बैरिकेड लगाएंगे कि निर्माण श्रमिक है ही नहीं है, फिर बैरिकेड लगाएंगे कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम है या नहीं है। 20 बैरिकेड लगाने के बाद में कहेंगे कि साहब मैं तो इनमें से कोई सी कैटेगरी में नहीं हूँ, तो कहा कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। इसलिए घोषणा बड़ी करेंगे, रिलीफ चंद लोगों को देने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी आप जैसे कह रहे हैं, सही है कि हो सकता है क्रियान्वित नहीं हो पाए, लेकिन अगर हम चिरंजीवी बीमा योजना देखें, उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, या शहरी विकास का जो है, अर्बन शहरी विकास, लोगों को यहाँ पर रोजगार देना, तो क्या आपको क्या लगता है कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप क्षेत्र में काफी रहते हैं, क्या फायदा मिला है? और अगर कोई नाराज है तो कौन सा वर्ग नाराज है? देखिए, 2 उदाहरण मैं आप सबके सामने कहूंगा। मुख्यमंत्री जी के जब अस्वस्थ हुए तो वो SMS हॉस्पिटल के अंदर गए थे। SMS हॉस्पिटल की स्थितियों को देखकर वो खुद भी नाराज हुए। चिरंजीवी योजना के अंदर जब वे सत्ता पक्ष की विधायक दिव्या मदेरणा धरने के ऊपर बैठे हैं, हॉस्पिटल के खिलाफ बैठे हैं, इस बात को प्रमाणित करता है कि चिरंजीवी योजना का लाभ आम जन को नहीं मिल रहा, ताकि इनके खुद के विधायक की संतुष्ट नहीं है। ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जो सरकार की इन योजनाओं की ये कितने वाहवाही लूटने का काम करे, लेकिन कलाइयां खोलने का काम करते हैं।
और युवा पे खास फोकस है। अभी एक वो लेटर जारी किया है कि जो कॉलेज के छात्र हैं वो इस बजट को लाइव देखें। तो 4% जो युवा वोट बैंक है राजस्थान में शायद बहुत अहम है। सपने दिखाने से या सपने देखने से खुशियां नहीं मिलती, सपनों की क्रियान्विति होने से खुशियां मिलती है। सिर्फ ये लाइव दिखाकर सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, क्रियान्विति होना संभव ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामलाल जी हमसे बात कर रहे थे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है राजस्थान में, बता रहे थे कि जो बजट की घोषणाएं हैं कितनी क्रियान्वित होती हैं, कितने लोगों पर लाभ होगा, उसका काफी कुछ असर, सरकार को चुनावों में कितनी बढ़त मिलती है, काफी कुछ असर जो है वो क्रियान्वयन पर टिका रहेगा।